Assalamu alaikum, poster and first year students. How are you all? Hope you will be fine there. Yes, how's going your holidays? COVID holidays. Okay. Alhamdulillah, I'm also fine. You tell me first that can you hear my voice? Is my voice clear to all of you? Alia? Good afternoon. Oh, God, that's good. Yes, it's not evening, it's afternoon. Okay, good afternoon. Okay, thank you very much, Mira, for telling me that my voice is clear. I'm fine, Mariam. Thank you very much. Okay, so tell me, who will tell me that what was the previous lecture we have attended online? Uh, yes, which one topic we have started? Okay, thank you, Fiza. I really miss all of you because I want to speak English and I want to listen your English. That's why. Walaikum assalam, Sumaya. I really enjoyed your class. Walaikum salam, Sundar Jamun. Yes, dear. Do tell me which one topic we discussed in online class, in our previous online class. Just I forget. I think there is no any topic we have started. So जी कोई भी टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया था क्या क्लास? जी क्लास आई थिंक कोई भी टॉपिक हमने शायद स्टार्ट नहीं किया था. कुछ पढ़ाना शुरू किया था मैंने, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है. आई थिंक आपकी लास्ट टाइम जो है आपकी क्लास ही हुई थी, ऑनलाइन क्लास नहीं थी, आप लोगों की क्लास ही थी. एनी हाउ लेट्स स्टार्ट द एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन, रीडिंग करवाई हुई है मैंने आपको. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर? Okay, let's start the style of writing.
Okay, class. So we'll tell you that what is an APS style of writing. APS style of writing, in fact, okay. APS style of writing. What is an APS style of writing? Who will tell me? The origin of idiom, idiomatic expression. Thank you, Dija. Okay, let's start the APS style of writing today. So, what do you know about APS style of writing? What is an APS style of writing class? First year. Yes, to tell me. Yes, class. Who will tell me? G class. All the time, all teachers just doing here. आवाज आ रही है नहीं आ रही इन्हीं चीजों में जो है ना वो लगे रहते हैं. जी मरियम इकबाल प्रेजेंट प्लीज. मैं क्या पूछ रही हूँ भाई. मरियम इकबाल वो वहाँ बैठ के ले रहा था तो कैसे ले रहा था. जी. Okay, yes, voice is clear. So, American Psychological Association. So, this Shamun, how do you know it? Do tell me, have you used a Google at your cell phone? Yes, Sundar Shamun, do tell me, American Psychological Association, how do you know it? It's a difficult question. Most of the students didn't answer me in my class. Then, how did you get the answer so early? American Psychological Association, very good. But how do you know it? Do tell me, Sundar. Okay, let's start. APS style of writing. APS style is writing style basically, okay, and format for academic documents such as college journals, articles, and books, and is commonly used for citing sources within the field of social sciences. It is described in the Style Guide of the American Psychological Association. Okay, what APA stands for American Psychological Association. So APA style is writing style. ठीक है. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट द एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज जो है वो क्या है. एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग है और फॉर्मेट फॉर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सच एज कॉलेज जर्नल आर्टिकल्स एंड बुक्स एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर साइटिंग सोर्सेज. ठीक है, साइटिंग सोर्सेज के. Okay, very good, Sundar. You have learned about it. What you learn more? Do write.
मुझे बताएं, पता नहीं आपकी तरफ से हो सकता है, मतलब लाइक इफ यू वांट टू स्पीक देन देयर इज द ऑप्शन, just to tell me there is any option on your computer or laptops or on webinar jam that you can speak if you want to ask any question verbally, then have you any option to speak? Yes, first year. ओके, एपीएस स्टाइल जो होता है ना, मैं आपको बताती हूँ. Webinar is best. Okay, I know webinar is best, but just I want to ask that is there any option to speak if you want to speak? If you want to ask any question verbally, is there any option to speak? You can speak also, or you can listen only. I don't know. Because I want to ask the questions to Sundar Jamon that what she learned about APS style of writing. Anyhow, मैं आपको बताती हूँ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज के APS स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है ना, एक राइटिंग फॉर्मेट होता है, ठीक है. एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सच एज स्कॉलरी जर्नल आर्टिकल्स बुक्स कॉमनली यूज्ड फॉर साइटिंग सोर्सेज विद इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज, ठीक है. नहीं, जूम ऐप की बात नहीं करी मैं, वेबिनार की ही बात कर रही हूँ, ठीक है. कि इस पे आपके पास कोई ऑप्शन होती है कि आप लोग जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाहें तो बोल सकें, आप लोग माइक यूज कर सकें. जूम पे तो होती है ना. तो इधर मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन से आइकन्स आ रहे होते हैं ना. एनी हाउ, अच्छा जी, एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होता है ना, एक राइटिंग स्टाइल होता है. आप लोगों ने कभी भी जो है वो देखा होगा लाइक 30th नवंबर अच्छा जी, आपने देखा होगा ये जो आखिर में रेफरेंस लिस्ट होती है आप लोगों के पास. हाँ, बिल्कुल राइटिंग स्टाइल में ही यूज़ करती हैं आप लोग. अगर अपनी बुक्स देखें ना तो उसके आखिर में लिखा हुआ होगा, एक राइटर का नेम लिखा हुआ होगा, जिस तरह के डेविड हॉक्स हो गया, ठीक है. डेविड हॉक्स लिखा होता है, आगे 2005 लिखा हुआ होता है, फिर कोमा लगा होता है समटाइम, फिर आगे पब्लिशर नेम लिखा होता है, फिर सिटी पब्लिश जहाँ से हुई है वो सिटी नेम लिखा होता है, ठीक है. कौन से ईयर में बुक पब्लिश हुई है वो लिखा हुआ होता है. आप लोगों ने देखा होगा अक्सर. अभी भी अगर अपनी कोई बुक आप खोल लें, उसके आखिर में एक रेफरेंस लिस्ट होगी, ठीक है. रेफरेंस लिस्ट में अगर आप देखें ना तो आपको डिफरेंट वहां पे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें पहले राइटर नेम लिखा हुआ होता है, ठीक है. ओके, अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है कि लाइक जो है वो एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में, ठीक है. तो आप लोग देखेंगे कि समटाइम्स जो है ना वो लिखा होता है, राइटर नेम लिखा होता है, उसके बाद जो है फिर कुछ 2020 आप समझ ले लिखा होता है, या 2019 लिखा होता है, इस तरह से, ठीक है. फिर आगे कोमा लगा होता है या डैश लगा हुआ होता है, फिर आगे बुक नेम लिखा होता है, फिर आगे जो है वो इस तरह से आर्टिकल. अच्छा, अब ये नहीं होता कि आप लोग ये कहें कि रेफरेंस लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें लिखा होता है, आर्टिकल्स में भी लिखा हो सकता है, कोई हमारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उसके भी आखिर में लिखा हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ही कोई रिसर्च वर्क किया है, ठीक है, रिसर्च वर्क किया है, लेकिन मैंने किसी का रेफरेंस दिया अपने रिसर्च वर्क में, तो मैं किस तरह से वो राइटर नेम लिखूंगी. आप देखिए, फॉर एग्जांपल आप भी रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक रिसर्च वर्क करने के लिए देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स का, सबको, सब क्लास को. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, सबको करने के लिए देती हूँ. मैं कहती हूँ आप लोग जो भी इसमें रेफरेंस लिखेंगे ना, ठीक है, जहाँ जहाँ से आप लोग वो रिसर्च लेंगे, कि चलें फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों को देती हूँ कोई भी रिसर्च करने के लिए, तो आपको मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने इंटरनेट से लेना है या कोई भी बुक से लेना है. अब क्या करेंगे आप लोग, रेफरेंस तो लेंगे. अब मैंने कहा कि आपने एपीएस स्टाइल में लिखना है, उसका जो रेफरेंस होगा, ठीक है. अब स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे कि ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, मरियम तारिक है, मरियम तारिक ने एक बुक ली, ठीक है, बुक में वो देख लिया जी ये ऑथर नेम क्या है,
विलियम डेविड है, ठीक है, विलियम डेविड लिख दिया। विलियम, अब रेफरेंस लिखना है ना मरियम ने, तो मरियम क्या करेगी, विलियम डेविड लिख देगी। उसके बाद जी क्या, बस विलियम डेविड और आगे बुक का नेम लिख देगी, ठीक है। अब क्या होता है, इसी तरह मैंने किसको कह दिया जी, अनसब को कह दिया कि अनसब आपने भी रिसर्च वर्क करना है। अनसब के पास, अनसब ने जहाँ से रिसर्च वर्क किया, किसी का अगर रेफरेंस लिखा इसने वहां पे, तो इसने जो है वो बुक नेम लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मरियम ने पहले जो है राइटर नेम लिख दिया, बुक नेम लिखा, तो उसके बाद कुछ और लिखा, ठीक है। लेकिन अब अंसर ने क्या किया, अंसर ने पहले जी बुक जो थी वो उसका नेम पूरा लिख दिया, और उससे उसके आगे जो है वो राइटर का नेम लिख दिया, और उसके आगे जो है वो ईयर लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब सबके पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ आ गए। अब मुझे पता ही नहीं चला कि भाई मुझे, मेरे लिए पूरी क्लास है ना, 40 स्टूडेंट्स है अगर आपकी क्लास के सपोज, तो हर किसी ने रेफरेंस जिस तरह से दिया वो अपने तरीके से लिखता गया कि मैंने इस बुक से लिया। किसी ने पहले बुक नेम लिख दिया, किसी ने ईयर पहले लिख दिया, और जी पब्लिशर का तो नाम लिखा ही नहीं है। अब क्या है, अब ये हो सकता है कि जी विलियम डेविस जो है, हम कह रहे हैं विलियम डेविस ने बुक लिखी है, ठीक है, टॉपिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं उसके, ठीक है। आपने विलियम डेविड लिख दिया, ठीक है, आगे क्या लिख दिया, बुक का नेम लिख दिया, ठीक है। लेकिन किस ईयर में पब्लिश हुई, उसका रिवाइज एडिशन था, एडिशन भी लिखना होता है इसमें, ठीक है, रिवाइज एडिशन था नहीं था। अब मैंने रेफरेंस चेक करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बैठ के रेफरेंस चेक करती रहूंगी कि विलियम डेविस का जो है, ये मरियम ने लिखा है जी विलियम डेविस का है, और जी पब्लिश ईयर जो है वो 2017 है, लेकिन इसका रिवाइज एडिशन मैंने देखना है कि कौन सा एडिशन देखना है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे लिए मुश्किल होगी। अब एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग जब इन्होंने बनाया, ठीक है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग का मकसद क्या होता है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग का मकसद ये होता है कि सब स्टूडेंट्स जो हैं एक फॉर्मेट दिया जाएगा, सेट फॉर्मेट, उस सेट फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो स्टूडेंट आगे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, एक सेट फॉर्मेट दिया ना, उस सेट फॉर्मेट के मुताबिक ही सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले उस सेट फॉर्मेट के मुताबिक, उस सेट फॉर्मेट के मुताबिक जो है सबसे पहले वो क्या लिखेंगे, लिखेंगे जी राइटर नेम आता है सबसे पहले, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, उसके बाद जो है पब्लिशर का नेम आता है, उसके बाद कौन सी सिटी से पब्लिश हुई है वो आता है, ठीक है। ये एक पूरा फॉर्मेट सेट किया होता है, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। अब ये सारा सेट फॉर्मेट किसने दिया है हमें, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, ठीक है, जो कि ऑल इन द वर्ल्ड जो है वो ये यूज होता है, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब जब आपको एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग आ जाता है, आप किसी भी रेफरेंस को लिखते हैं तो आप उसी फॉर्मेट के मुताबिक रेफरेंस लिखते हैं, तो मेरे लिए वो मुश्किल नहीं होता चेक करना 40 स्टूडेंट का काम, ठीक है। कि रेफरेंस में मुझे पता है, पहले राइटर नेम ही मैंने बताया हुआ कि एक सेट फॉर्मेट से आप लोग लिखेंगे ना, फिर तो इससे फिर उसमें मुझे मुश्किल नहीं होगी चेक करने में। अब आपको पता चला कि एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है। जिसको नहीं समझ आए मुझे बताएं, मैं इससे भी आसान लफ्जों में आप लोगों को समझा देती हूँ क्लास जी। Okay, APA style is a writing style and format for academic documents such as scholarly, journal articles, and books, and is commonly used for citing sources within the field of social sciences. It is described in the Style Guide of the American Psychological Association. अच्छा, नीलम भी आ जाई है। हाउ आर यू नीलम? नाइस टू सी यू हियर। And how's your little baby? ओके, मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको स्लाइड में पता चल रहा है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो एपीए इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, ओके, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन,
ओके, क्लियर टू एवरीवन। अभी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए है ये, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ए फॉर अमेरिकन, ए फॉर स्टैंड फॉर साइकोलॉजिकल, ए फॉर एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फाइन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक सेट फॉर्मेट राइटिंग का दिया है, रेफरेंस लिस्ट का दिया है, एक राइटिंग स्टाइल दिया है जिसके मुताबिक ऑल इन द वर्ड जो है वो लिखा जाता है, रेफरेंस लिखा जाता है जो कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है सबके लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ? ठीक है, सब बच्चे पूछना कि ये होता क्या है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इट्स अ राइटिंग स्टाइल and writing style set by American Psychological Association. So APA style of writing belongs to American Psychological Association because American Psychology Association set the writing style. Okay. अच्छा जी, अब एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, हम कोई भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं, स्कॉलरली जर्नल, आर्टिकल, कोई भी बुक लिखने जा रहे हैं, बुक के पीछे से भी रेफरेंस होते हैं कि हमने ये फलां रेफरेंस जो है ना यहाँ से शामिल किए हैं, ठीक है। राइटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेट फॉर एकेडमिक सच एज स्कॉलरली जर्नल, आर्टिकल्स एंड बुक्स एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर साइटिंग within the field of social sciences. It is described in the style guide of the American Psychological Association. ठीक है, अब पहले मैंने ये समझाना था आप लोगों को कि होता क्या है ये स्टाइल ऑफ राइटिंग। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बहुत जितना मैं इजी वे में आपको समझा सकती थी मैंने आपको समझा दिया जाके, ठीक है। अब आप लोग कोई भी बुक आप लोगों के पास पड़ी होगी, आप कोई भी अपनी बुक खोल के देखें, उसमें एंड पे रेफरेंस लिस्ट दी होती है, ठीक है। रेफरेंस लिस्ट देखें, रेफरेंस लिस्ट को खोल लें, ठीक है। रेफरेंस लिस्ट को जब आप लोग खोलते हैं ना तो रेफरेंस लिस्ट में नेम लिखा होगा, कोई भी राइटर का नेम लिखा होगा, ठीक है। राइटर का नेम लिखा होगा, राइटर जी, ऑथर का नेम लिखा होगा, ठीक है। ऑथर का नेम लिखा होगा, फिर आगे ये लिखा होगा, फिर पब्लिशर नेम लिखा होगा, फिर पब्लिक प्लेस लिखा होगा, फिर कोई सिटी का नेम लिखा होगा, फिर 2020 लिखा होगा, 2021 लिखा होगा, इस तरह की चीजें लिखी हुई होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, आप जरूर चेक जरूर करें, अपनी कोई रेफरेंस लिस्ट बनी हुई है तो बताएं मुझे कि हाँ जी मैडम ये रेफरेंस है और इस तरीके से लिखा हुआ है। कोई भी अगर आपके पास बुक पड़ी है तो आप मुझे जो है इनबॉक्स करें। इनबॉक्स का मतलब है यानी ये वेबिनार पे मुझे लिख के दें कि ये वाली लाइन जो है इस तरह से लिखी हुई है, तो मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से क्या होती है, ठीक है। अब ये अटेंडेंस को जो है ये मैंने प्राइवेट मैसेजेस किए होते हैं, मैं ये पब्लिक मैसेजेस करती हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे कोई भी जो है रेफरेंस लिस्ट का रेफरेंस निकाल के यहाँ लिख के भेजें ताकि मैं उसका एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, और बाकी बच्चों को भी बड़ी अच्छी सी समझ आ जाएगी। ओके, मे आई मूव द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? Okay, next slide. Use of APA style of writing. APA style is widely used either entirely or with modification by hundreds of other scientist journals, including medical and other public health journals, in many textbooks and in academic for papers written in classes. क्या कहते हैं कि ये जो एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग है ये मुकम्मल तौर पर और इंटायरली या फिर मॉडिफिकेशंस के साथ, ठीक है, मुकम्मल तौर पर या फिर मॉडिफिकेशंस के साथ जो है वो यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है ये? हमारी रेफरेंस लिस्ट में जब हम रेफरेंस देने के लिए जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ही कहा गया था कि जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगी एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग। पता नहीं पार्ट 1 को कहा गया था कि पार्ट 2 को क्या क्या था। नहीं हाँ चले कोई बात नहीं, आप okay, fine. AP style is widely used either or entirely or with modifications by hundreds of other scientific journals, including medical and other public health journals, in many textbooks and in academia for papers written in classes। कहते हैं कि all in the world यही यूज होता है, ठीक है। AP स्टाइल ऑफ राइटिंग हाँ मुकम्मल तौर पर या फिर थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ, ठीक है, लेकिन हंड्रेड ऑफ जर्नल्स हो, साइंटिस्ट हो, पब्लिक हेल्थ जर्नल्स हो, बुक्स हो, टेक्स्ट बुक हो, या फिर कोई भी हमारे थीसिस वर्क हो, हमारा डॉक्यूमेंट हो, कोई भी किसी भी चीज़ में हमें रेफरेंस देना है तो हमने APA स्टाइल ऑफ राइटिंग ही यूज करना है। Clear to everyone? Okay, next is about
characteristics of APA style citation. In citation, अच्छा अब जो है ना रेफरेंस जो बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। टेक्स्ट साइटेशन में और तरह से होते हैं और रेफरेंस लिस्ट में और तरह से होते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट साइटेशन में हम देखते हैं कि टेक्स्ट कोई हमने लिखा उसका रेफरेंस किस तरह से देना है। रेफरेंस लिस्ट है तो उसमें किस तरह से, इन टेक्स्ट साइटेशन में किस तरह से देंगे। एपीए स्टाइल यूजेस एन ऑथर date a reference citation system in the text with an accompanying reference list. That means that to cite any reference in a paper, the writer should cite the author and year of the work, either by putting both in parentheses separated by a comma parenthetical citation, or by putting the author in the narrative of the sentence and the year in parentheses narrative citation. ओके फाइन, क्या कहते हैं कि साइटेशन, जब हम साइट का मतलब क्या होता है, एस आई टी ई साइट का मतलब क्या होता है क्लास। एक साइट होता है एस आई जी एच टी साइट और एक साइट होता है सी आई टी ई साइट। दोनों साइट का कौन मतलब बताएगा मुझे क्लास में से, सी आई टी साइट कौन सी होती है, एस आई जी एच टी साइट कौन सी होती है जी। वेरी गुड, साइटेशन मीन्स हवाला देना। वेरी गुड मरियम, तारिक एंड मरियम इकबाल, वेरी गुड मरियम। दोनों मरियम को दोनों दफा शाबाश है। बिग हैंड फॉर मरियम तारिक एंड मरियम इकबाल। क्लैपिंग की आवाज आ गई है, ठीक है। वेरी गुड मरियम, तारिक ने जो है वो आंसर दिया है। साइटेशन मीन हवाला देना, चाहे देख के दिया है या खुद से दिया है, शाबाश। साइटेशन का मतलब होता है एस आई जी एच टी, साइट का मतलब होता है नजर, देखना, ठीक है। और सी आई टी ए सी आई ओ एन, साइटेशन का मतलब होता है हवाला देना, रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। अब रेफरेंस को तो हम इस तरह से कहते हैं ना जी, मेरा रेफरेंस दे देना जाके, ठीक है, कि मेरा हवाला दे देना जाके। लेकिन ये जो साइटेशन होती है ये उसमें आती है आप लोगों की इन टेक्स्ट साइटेशन, टेक्स्ट है तो हवाला देंगे हम किसका, साइटेशन। लाइक रेफरेंस लिस्ट में जो हम लोग देते हैं कि जो राइटर नेम है, पब्लिकेशन प्लेस है, वो सारा देते हैं ना, वो साइटेशन कहलाती है। क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, जब मरियम तारिक के लिए जो है वो तो क्लैपिंग क्यों हुई कि इसने जो है इन्होंने जवाब दिया, साइटेशन का फ़ौरन मतलब बताया। अब मरियम इकबाल के लिए इसलिए हुई है कि मरियम इकबाल ने फ़ौरन, मैंने कहा था कि आप अपनी जो बुक लें उसमें से मुझे सारा टाइप करके भेजें तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरे ख्याल से अभी जो मैसेजेस हैं वो आप सब भी देख सकते हैं, मैंने जो है वो प्राइवेट नहीं किए हुए। All attendance, I think you can see right now, देख सकते हैं आप लोग सब। तो मुझे बता दें मरियम इकबाल का जो मैसेज है, फोगोरोस RN 2012 इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी टेस्टिंग 5th एडिशन। जी देख सकते हैं ये सारे बच्चे, पहले मुझे बताएं फिर मैं समझाती हूँ इसको। बड़ा अच्छा आपने जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मरियम इकबाल भेजा है आपने, आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी। जी, स्पीकी का ही तो है ऑप्शन मेरे पास, गजाला की है या स्पीकी ऑप्शन। जी गजाला है वहां पर। हेलो जी, गजाला मेरे पास अभी स्पीकी ऑप्शन आई थी। जी यस मैम, ठीक है, सारे भी देख सकते हैं।
ठीक है, सबको नजर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके फाइन, शाबाश। ठीक है, अब ये देखिए, फोगोरोस इससे लिखे ना, फोगोरोस आनन, ठीक है, फोगोरोस आरएन जो है ना, ये राइटर नेम हो गया। ठीक है, अब राइटर नेम लिखने का भी एक तरीका बताया जाता है। फोगोरोस आप देख रहे हैं ना, फोगोरोस आरएन। चैट में अगर आप जाएंगे, चैट बॉक्स में मरियम इकबाल ने फोगोरोस आरएन लिखा है, राइटर नेम हो गया। 2012 जो है वो उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिक टेस्टिंग, ये क्या हो गया, बुक नेम हो गया। ठीक है, 5th एडिशन है। ईडी का मतलब क्या होता है, रेफरेंस लिस्ट में ईडी किसको बोलते हैं, एडिशन को बोलते हैं। 5th एडिशन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब पीपी, 2 दफा पीपी क्यों लिखा गया है, पीपी जो है इसका मतलब है पेज नंबर, फर्स्ट पेज 4 to 12। पीपी 2 बार क्यों लिखते हैं कि इस सफ़े से लेके इस सफ़े तक। ठीक है, पहला पेज 4 से 12 तक उसने लिया है, दूसरा जो है 210 to 256 लिया है। इस वजह से उसने पीपी 2 बार लिखा है कि पेज नंबर फ्रॉम 4 to 12, then 210 to 256। Is it clear to all of you? आगे होबिकन, एनजे, विली, ब्लैकवेल, आगे जो है ये उन्होंने जगह का नाम, पब्लिशर और फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिख दिया है। क्लियर टू एवरीवन? इस तरह से देते हैं। जो रेफरेंस हमने देना होता है ना, साइटेशन, ये साइटेशन होती है, देनी होती है। ठीक है, पहले राइटर नेम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ईयर है पब्लिकेशन का वो आ जाता है, फिर उसके बाद नेम आ जाता है, एडिशन आ जाता है, फिर पेज नंबर आ जाते हैं, फिर नेम ऑफ प्लेस और वो सारा आ जाता है। हाँ, वेरी गुड। मरियम को ये समझ नहीं है कि फुल स्टॉप और कोमा, मैं अभी आपको ये बता भी नहीं रही कि फुल स्टॉप कहाँ आना है, कोमा कहाँ आना है, ब्रैकेट्स कहाँ आनी है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग होता क्या है और किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अभी हम सारी की इंशाल्लाह, व्हेन यू विल कम इन शालामा नर्सरी कॉलेज, आई विल प्रैक्टिस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आप लोग कभी भी कोई रेफरेंस देना पड़े तो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो ये करना। क्लियर टू एवरीवन? इट्स वेरी इजी, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत इजी है ये करना, कोई मुश्किल भी नहीं है इसमें करने का। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं इससे ज़्यादा इजी वे में जाके नहीं समझा सकती थी आपको। बहुत इजी वे में मेरे ख्याल से मैं समझ, अभी भी जिसको नहीं समझ आया वो मुझसे ज़रूर पूछ ले कि मैडम हमें ये बात समझनी है, ये बता दें। अच्छा जी, अगर हम आप इन टेक्स्ट साइटेशन में देखिए, अभी आप लोग जो है अपना स्लाइड में देखें, एपी स्टाइल यूजेस एन ऑथर डेट रेफरेंस। ठीक है, डेट रेफरेंस आती है, साइटेशन सिस्टम आता है इन द टेक्स्ट विद accompanying reference list होती है। दैट मीन्स दैट टू साइट एनी रेफरेंस इन अ पेपर। ठीक है, पेपर में कोई भी रेफरेंस आ रहा है, द राइटर शुड साइट द ऑथर। अब हम देखें, ऑथर का साइट दे रही हैं, हवाला देने ना ऑथर का। ठीक है, साइट, ईयर ऑफ द वर्क, वही आपने देखा, पहले ऑथर का नाम आया, फिर ईयर ऑफ द वर्क आ गया, इधर बाय पुटिंग बोथ इन पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय अ कॉमा। पैरेंथेसिस क्या होता है क्लास? कहेंगे आज तो टीचर हमसे पूछती जा रही हैं, खुद कुछ बता नहीं रही हैं। जी, पेरेंथेसिस क्या होता है? पेरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा, ये थर्ड लास्ट लाइन है पेरेंथेसिस। ये क्या होता है क्लास, पेरेंथेसिस? जी,
Okay, Adila Safdar, word or phrase inserted as an explanation. जी ये कहाँ से लिखा है अदीला आपने? पैरेंथेसिस गूगल किया है या खुद से पता है आपको अदीला? बात नहीं, गूगल भी किया है तो मैं कभी भी माइंड नहीं करती स्टूडेंट्स का गूगल करना, बल्कि अच्छी बात है। स्टूडेंट्स को यूज करना चाहिए, अपना बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तुक्का मारा तुक्का भी हमेशा थोड़ी ना चलता है। वर्ड ऑफ फ्रेज इंसर्टेड एज एन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे हालांकि गूगल करके फौरन मुझे बता देना चाहिए कि मैडम पैरेंथेसिस का ये मतलब होता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट मुझे बताता नहीं है फौरन गूगल करके। चलिए खैर ऐसे ही, अच्छा किया आपने मुझे बता दिया कि मैडम मैंने तुक्का मारा है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए, APA स्टाइल यूजेस an author date reference citation system in the text with an accompanying references. That means that to cite any reference in paper, the writer should cite the author. सबसे पहले क्या आ गया? ऑथर आ गया, फिर ईयर ऑफ द वर्क आ गया, ईथर। अब ये देखें जो रेफरेंस दिया था, आप अगर वो वाला खोलें जरा, मरियम इकबाल ने जो रेफरेंस दिए ना, तो वो खोल के देखें जरा स्टूडेंट्स, वो खोलें तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा इन टेक्स्ट साइटेशन। ठीक है, वो खोला आप लोगों ने, तो उसमें देखें आप लोग सब देखें कि क्या हमने यहाँ पर स्लाइड में अगर देखें, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है ऑथर, यहाँ पे भी पहले ऑथर लिखा हुआ है मरियम इकबाल ने जो हमें सेंड किया। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ द वर्क लिखा हुआ है, उसमें देखें ईयर ऑफ द वर्क 2012 ऐसे लिखा हुआ है। अब 2012 लिखा हुआ है इधर बाय पुटिंग बोथ, दोनों तरफ इन पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय अ कोमा। ठीक है, चलें पैरेंथेसिस, अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ है इधर बाय पुटिंग बोथ इन पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय अ कोमा पैरेंथेटिकल साइटेशन। अब ये इसको देख के बता दें, पहले राइटर नेम आ गया, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सॉरी ईयर ऑफ वर्क आ गया। ठीक है, अब ईयर ऑफ वर्क उसने क्या है कि दोनों साइडों पे पैरेंथेसिस यूज हुआ है। क्या मतलब होगा अब इसका पैरेंथेसिस का? अब तो समझ आ जानी चाहिए, मैंने समझा दिया कि पहले राइटर नेम है, उसके बाद ईयर ऑफ जो है वर्क ईयर है वो पैरेंथेसिस में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है पैरेंथेसिस का मतलब? जी बहुत इजी है, शाबाश। देखें जरा इसको, मरियम इकबाल ने जो रेफरेंस दिए ना हमें, बड़ा अच्छा दिया मैं। मरियम अगली दफा भी ये लिख देना आप, तो क्या ही बात है आपकी नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि इजी हो गया ना बच्चों को समझाना। ऐसे जो समझेंगे उनको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। जी ब्रैकेट्स में, वेरी गुड सुंदर श्यामोन, ब्रैकेट्स में लिखने को कहते हैं। ब्रैकेट्स जो बनती हैं ना उनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट राइट नाउ? अब पता चला आप लोगों को पैरेंथेसिस किसको कहते हैं? ब्रैकेट्स को बोलते हैं। Now
ओके फाइन, इंडेक्स साइटेशन, शाबाश, वेरी गुड। अब आपको पता चल गया ना, यहाँ पे जो ये स्लाइड है ना, अगर आप लोग मरियम वाली को देखेंगे ना एग्जांपल को, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी स्लाइड समझना, ठीक है। द राइटर शुड साइट द ऑथर एंड ईयर ऑफ द वर्क ईदर बाय पुटिंग बोथ इन द parentheses separated by a comma parenthetical citation or by putting the author in the narrative of the sentence and the year in parentheses narrative citation. Is it clear to all of you? नीलम, पैरेंथिकल साइटेशन क्या होता है? ब्रैकेट्स को कहते हैं। जिस तरह ये देखें, इस जो है ये आपको मैं बताती हूँ, द टेक्स्ट साइटेशन वाली ये स्लाइड जो चल रही है ना इस वक्त, ये देखें, पी स्टाइल यूजेस एन ऑथर डेट रेफरेंस साइटेशन सिस्टम इन द टेक्स्ट विद एन accompanying reference list, ठीक है। दैट मीन्स दैट टू साइट एनी रेफरेंस इन द पेपर, the writer should cite the author and the year of the work either by putting both in parentheses separated by a comma. parenthetical citation मतलब किसी चीज को ब्रैकेट में लिखने को कहते हैं parentheses, ठीक है। citation समझ आई अब आपको? और putting the author in the narrative of the sentence and the year in parentheses, क्लियर? समझ आई है नीलम अब आपको parentheses क्या होता है? ठीक है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले नेम आया। ये देखो मैंने अब दोबारा से जो है ये किया, पहले क्या है हमारे पास, राइटर नेम आया, ठीक है, ऑथर नेम आया है, ऑथर नेम के बाद हमने ब्रैकेट में लिखा है ना 2012, ठीक है। इस तरह से रेफरेंस लिखना है। ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, वर्क ईयर होता है उसका, पेरेंथेसिस में हमने वो दिया, आगे फिर कोमा लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं, फिर आगे क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया ये जनाब नेम ऑफ द बुक, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पेरेंथेसिस स्टार्ट किया, एडिशन लिखा, पेज नंबर दिया, और उसके बाद फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, वो सारा आ गया। क्लियर टू एवरीवन? नहीं ठीक है, ये होता है बस। ओके जी, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ क्योंकि एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क क्लास?